So right now I will put everyone in mute, and after the training session, I will unmute you all for asking questions. So good evening, everybody. My name is Shumen Banerjee, and welcome to the virtual Indian Silk and Silk Blend Sourcing Fair virtual training brought to you by the Indian Silk Export Promotion Council. Now, in this 1-hour training session, we will tell you how to operate the virtual platform. We have kept the portal user-friendly and convenient for new users to operate. But before that, I will also take this opportunity to tell you the key features of the virtual event, the marketing strategies that we are using to promote this fair in detail, followed with the training session and question and answer round. So let us begin this presentation with our official introduction video. Welcome to the Indian Silk and Silk Blend Products Sourcing Virtual Fairs and Buyer-Seller Meets, organized by the Indian Silk Export Promotion Council that is set up by the Ministry of Textiles, Government of India. These virtual events are exclusively designed for different regions and countries for sourcing silk and silk blend products, high fashion garments, scarves, stoles, fabrics, carpets, home furnishing, fashion accessories, textiles, gift items, GI products, made-ups, and much more. The event will have hundreds of pre-registered trade visitors from target countries. Buyers can access the virtual fair and buyer-seller meets using the login credentials in the link provided to them. The participants can have one-on-one interaction on text, chat, and video chat facilities on the platform. Explore the numerous business opportunities that awaits for you. Come, connect virtually. Now, why going virtual is the new normal? Now, in present scenario, when social distancing is the new norm, going virtual is the need of the hour. To generate new business lead, virtuality is the reality. Now, what are the benefits? Now, buyer and suppliers can access the portal and can have one-to-one interaction anywhere and at any time. The platform is totally secured as Indian IP address is blocked to access buyer platform. The reason behind blocking the Indian IP address is it has been noticed that sometimes the buyers who have registered with us share their user ID and password to the Indian suppliers. Now, if we do not block the Indian IP address, then they can access the portal using buyer's credential. So the privacy of the design of the participant will be compromised. So for this reason, we have made a barrier that Indian suppliers or exporters who are not part of the event, or if they are part of the event and has the buyer's credential, still they cannot access the buyer portal. इसमें क्या है कि let's say I am a buyer and I have registered with the council और मुझे पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल गया. अब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर मैं किसी इंडियन सप्लायर को दे दूं जो मेरा फ्रेंड है, तो वो बायर के क्रेडेंशियल्स यूज करके पोर्टल में एंटर कर सकता है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट देख सकता है. नो, इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव ब्लॉक्ड द इंडियन आईपी एड्रेस. मैं जब इंडिया में बैठ के कभी भी इंटरनेट में लॉग इन करता हूं तो एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है. हर कंट्री का अपना आईपी एड्रेस होता है. इसीलिए हमने क्या किया है कि बायर पोर्टल को ऐसे बनाया है कि जो इंडियन आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर देगा, तो इंडिया में बैठ के कोई भी सप्लायर्स लॉग इन नहीं कर सकेगा.
इवन वी एज एन एडमिन हम इंडिया में बैठ के बायर पोर्टल नहीं एक्सेस कर सकते. You can upload any number of product photographs. There is no restriction on that. A new feature has been introduced, that is 360 viewing. That will be explained by a technical support in detail. Product-based search option is available for buyers. System-generated automation matchmaking of buyers and sellers. Extensive marketing and promotion of the show has been done. We will discuss this in detail in our next slide. The buyer and seller will have one-to-one live chat through WhatsApp and video chat through Zoom. क्योंकि ये देखा गया है मैक्सिमम लोगों के पास आजकल WhatsApp है और Zoom है, तो हमने क्या किया, इन दोनों एप्स को हम हायर कर रहे हैं, अपने पोर्टल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम रीचेबिलिटी हो. Our focus is always on quality rather than quantity. So whoever buyers are coming, they are thoroughly scrutinized. We take their last 3 years turnover, last 3 years import value, whether they have import any items from India, supplier's name from whom they have import products. After analyzing all these, we have issued them their login ID and password. As the cost of the participation is so low, these virtual events are very cost effective, not only for the buyers but also for the sellers. बायर्स के लिए तो है ही कि अगर फिजिकल फेयर होता तो उन्हें वापस आना होता है, यहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग के चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस होता और टाइम ज्यादा लगता. यहाँ पे बायर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लॉग इन कर सकते हैं. और सेलर्स के लिए इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि दी चार्जेस फॉर वन इवेंट इज 2000 रुपीज, पर अगर आप 7 इवेंट के लिए लेते हैं तो वो पर इवेंट आपको 1500 रुपीज पड़ता है. अब आप देखिए एक इवेंट 5 डेज का है, so one day you are spending only 500 rupees, और उस 500 rupees में आपको 1800 बायर एक्सेस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं और आपका एक अच्छा बायर डेटा क्रिएट हो सकता है. Now visitor profile who will be attending the fair, they are importers, wholesalers, e-tailers, retailers, distributors, interior decorators, fashion designers, buying houses, trade associations, brand and private labels. Now let us talk about the marketing strategy we are doing to promote this event. We have categorized it into 4 parts. Firstly, we have hired a PR agency who are doing a personal calling to 1000 plus buyers, buying houses to promote our fair, to make them aware about the virtual event that we are doing. और ये जो हमने पीआर एजेंसी को जो हायर किया है, जो पर्सनल कॉलिंग कर रहे हैं टू डिफरेंट बायर्स, ये 5 लैंग्वेजेस में कर रहे हैं. इंग्लिश हो गया, पोर्चुगीज हो गया, जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच. Mass mailing, now we consider this as an important part in marketing. So we are sent emails to 5000 buyers who are especially importers of apparels, home furnishings, carpets, yarns, scarves, stores, who deals in these products. Another 20,000 emails will be sent to other visitors during the event to create the buzz and awareness about the fair and the benefits of these virtual fair. Now next is WhatsApp promotion. Now WhatsApp promotion is the most important part of our marketing strategy. क्योंकि देखा गया है जब हम मास मेलिंग करते हैं तो देयर आर चांसेस कि हमारे मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में जाए बायर के, या फिर प्रमोशनल टैब में. सो द बायर में मिस आउट आवर ईमेल. बट व्हाट्सएप में क्या है कि स्टडीज भी बताते हैं कि मोर देन 97% चांसेस है कि जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं आपका मैसेज यूजर पढ़ता है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेंडिंग flyers and promotional videos and registration links through WhatsApp to the buyers to encourage them to participate in our event. Now, apart from all this, we are also putting ads worldwide in Google AdWords. We are doing Facebook campaign. You must have seen that we are posting flyers in every second day if you are in Facebook page. And if not, I would request you all to please like our Facebook page and you will get all the latest updates about the event and also about the council from there. We are also present in YouTube. We have our own YouTube channel with the name of the Indian Silk Export Promotion Council. तो जो भी हमारे काउंसिल्स में एक्टिविटीज होती हैं उनकी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं. इवन कि ये जो जूम मीटिंग हो रहा है,
इसको हम रिकॉर्ड करके भी जो ट्यूटोरियल है वो हम यूट्यूब में डालेंगे। तो अगर फ्यूचर में आप जब अपने प्रोडक्ट पोस्ट करेंगे और आपको अगर कोई डाउट हो तो वो ट्यूटोरियल आप यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं। So these are the marketing strategies that we have used to promote our fair and encourage buyers to register with us. These are the dates of the events, virtual events that will happen in this financial year. Now, always keep this in mind that if you want to generate business through online, you have to stay online for longer duration of time. Taking part in one year event that is for 5 days is not enough, and I would recommend staying online for 15 days will give you result. As in virtual platform, the buyers are accessing platform as per their own convenience. देखिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का एक चीज जो डीमेरिट है वो ये है कि एडमिन का या ऑर्गेनाइजर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता बायर के ऊपर। बायर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म विजिट करता है, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को 24 आवर्स ओपन रखा है जिससे बायर कभी भी एक्सेस कर पाए। तो अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लेंगे, जैसे एक इवेंट के लिए ओनली 5 डेज के लिए, तो आपकी रीचेबिलिटी और विजिबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू अगर आपने पूरे 7 के 7 इवेंट या 3 या 4 इवेंट में आपने पार्ट लिया। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज गिव इट अ थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द वर्चुअल इवेंट्स। Now, you are also aware that our council is also organizing physical fair with the name of 10th India International Silk Fair, which is scheduled from 18 to 20 December 2021 at the Rivera House, Gurugram. Now, physical fair और virtual fair are co-related. मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब फिजिकल फेयर में बायर आता है तो वो हमसे फेयर डायरेक्टरी मांगता है आने से पहले, क्योंकि उसे अपना होमवर्क करना होता है कि किस पार्टिसिपेंट के पास हमें जाना है। अब उस फेयर डायरेक्टरी में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, उसमें कंपनी का नाम होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, मोबाइल नंबर और प्रोडक्ट डील्स इन, दैट्स इट। इसलिए अब की बार हम क्या कर रहे हैं, जो बायर्स आ रहे हैं हमारे फेयर में उनको हम पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं ऑफ दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिससे वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आए, पार्टिसिपेंट को देखे, उसके प्रोडक्ट्स भी देखे, उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट पहले ही कर ले इवेंट आने से पहले। नाउ जो पार्टिसिपेंट्स फिजिकल फेयर में भी है और वर्चुअल फेयर में भी है, उनके स्टॉल के ऊपर एक टैग होगा अलग से जो सिग्निफाई करेगा कि ये पार्टिसिपेंट फिजिकल फेयर में भी है। ऑब्वियसली बायर जो है वो उन पार्टिसिपेंट्स के पास ज्यादा जाएंगे जो फिजिकल फेयर में भी पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि बायर जो फिजिकल फेयर में आ रहे हैं वो उनसे 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकता है। तो इसको दो सेपरेट आइडेंटिटी मत लीजिए, ये दोनों को रिलेटेड है। अगर आप सिर्फ वर्चुअल में लेंगे और फिजिकल में नहीं लेंगे, ऑब्वियसली वर्चुअल में आपके पास बायर आएंगे पर आपको फ्यूचर ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर आपको इंस्टेंट ऑर्डर चाहिए तो ऑब्वियसली जब आप फिजिकल फेयर में भी होते हैं, बायर आपसे वर्चुअली कांटेक्ट कर लिया, अब फिजिकली भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो चांसेस आर मोर that you will generate business. So that's it. Now we will start our virtual platform training. The session will be handled by Mr. Dheeraj, who is our technical head. And after the training session, we will have our question answer round. So over to you, Dheeraj ji. Okay, sir. Hello, everyone. आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। विजिबल है सर? हाँ विजिबल है। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ एकदम क्लियर। ये हमारा डैशबोर्ड है, जो आपको क्रेडेंशियल मिल रहा होगा वहां से सिल्क के साइड से, उसमें लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आता है हमारा। यहाँ पे आप अपना स्टॉल क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट यहीं से डाल सकते हैं। जो भी चीज करना है आपको यहीं से करना है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या होना है। ये है 360 व्यू प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो आप इसमें 360 व्यू के लिए आपको कम से कम मिनिमम जो है डालना है 18 इमेज डालना है हर एक एंगल में।
तो जैसे ही आप इसके अंदर आइएगा तो यहाँ क्रिएट 360 इमेज का एक बटन है, उसके पे क्लिक करने पे ये हमारा आता है जहाँ पे आप एक साथ में जैसे फाइल नाम ब्राउज करेंगे हम, तो जितने भी आपके पास इमेज होंगे मिनिमम 18 इमेज डालने हैं बेस्ट व्यू के लिए। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करके इमेज डाल सकते हैं। एक ही बार में आप 18 इमेज सेलेक्ट कीजिए और 18 इमेज सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो फिर यहाँ पे क्या है, जब इमेज डाल दिया आप अपना प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए, प्रोडक्ट कोड डाल दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। फिर प्राइमरी कैटेगरी हमने यहाँ पे दे रखा है, जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं। और सेकेंडरी कैटेगरी भी डालना है। जैसे प्राइमरी कैटेगरी जैसे आप गारमेंट्स यूज करते हैं, तो सेकेंडरी कैटेगरी में गारमेंट्स का डालना है, जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, वो डाल के और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, सबमिट करते ही आप इस विंडो पे आ जाइएगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। और आपको अगर इसको देखना है कि किस तरीके से आपका ये दिखेगा 360 व्यू, तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं इस वाले बटन से। इस तरीके से आपका वो प्रोडक्ट दिखेगा, जो भी आप इमेज डाल रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। और अगर आपको एडिट करना है, कोई भी सीक्वेंस को चेंज करना है कि इस इमेज को मुझे फर्स्ट पे डालना है, इस इमेज को सेकंड पे, तो आप एडिट में आइएगा, जो हमारा वहाँ पे पेंसिल बटन है, ये इस पे क्लिक करने पे एडिट पे आएगा। तो आप यहाँ से सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इमेज भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इमेज रिप्लेस कर ली और सीक्वेंस चेंज कर दिए, तो फिर आपको देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा वो व्यू कैसा दिख रहा है। ये हमारा 360 व्यू। फिर आता है वीडियो, अपलोड वीडियो का एक सेक्शन है। इसमें आपका जो भी आपको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वीडियो डालना है, या फिर जो भी आपके कंपनीज हैं उनके अगर वीडियो डालने हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे वीडियो डालने के लिए आपको पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी होगी, फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूट्यूब वाला वीडियो जो है यहाँ पे डालने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिएगा। तो उसमें यूट्यूब के लिंक में जो v के बाद वाला जो होता है वो आईडी होता है, उस आईडी को यहाँ पे डाल के फिर सबमिट करना होता है। सबमिट करते ही आपका वो वीडियो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि वो वीडियो हमारा सही है या नहीं है, तो आप फिर व्यू कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को। तो इस तरीके से आपको वो वीडियो दिख जाएगा जो भी आप डालते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ वीडियो डालने से पहले यूट्यूब पे वीडियो डालना जरूरी है, और उस यूट्यूब के लिंक का में जो आईडी होता है वो जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड पार्ट में है वही डालना है बस, कॉपी ओनली बोल्ड पार्ट, यही डालना है। तो फिर अगर आपको एडिट करना है या फिर रिप्लेस करना है इस वीडियो को, तो आप यहाँ आके एडिट के अंदर आके रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट इससे कर सकते हैं आप इस बटन से। यहाँ पे है अपलोड इमेज सेक्शन। इस सेक्शन में आप अपना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड इमेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे ब्राउज फाइल का ऑप्शन आएगा। ब्राउज फाइल का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। मोर देन 5 इमेज जो है एट ए टाइम आप डाल सकते हैं, और इंक्लूडिंग 5 इमेजेस का जो साइज होगा वो 5 MB ही होना चाहिए। 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 5 MB के बीच में ही होना चाहिए, 5 MB तक। यहाँ भी आप एक साथ डाल सकते हैं, प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसके, और प्राइमरी कैटेगरी में भी हमने यहाँ दे रखा है। जो भी आपको कैटेगरी चूज करना है कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी कैटेगरी भी डाल सकते हैं, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि गारमेंट्स अगर डालते हैं तो सेकेंडरी कैटेगरी में गारमेंट्स का जैसे कुछ भी सलवार हो गया, शर्ट पैंट, वो सेकेंडरी कैटेगरी में आएगा। फिर ये है कैटलॉग। आप अपने कंपनी का कैटलॉग डाल सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट का कैटलॉग डाल सकते हैं। तो आप अपलोड कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ब्राउज करेंगे। कैटलॉग क्या है, PDF फॉर्मेट में होगा, PDF फॉर्मेट में होगा, और उसका साइज जो है मैक्सिमम 20 MB होना चाहिए, और एक ही कैटलॉग आप डाल सकते हैं। जैसे ही कैटलॉग डालेंगे आपका यहाँ पे दिख जाएगा कि आप जो भी कैटलॉग डालें वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको दूसरा कोई कैटलॉग डालना है तो फिर आप एडिट करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैटलॉग डालेगा 20 MB तक।
क्रिएट स्टॉल। क्रिएट स्टॉल में सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पहले आप अपना स्टॉल क्रिएट कर लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे सारा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे नेम, कंपनी नेम डालने का है। जो भी आप कंपनी नेम यहाँ डालिएगा यहाँ पे विजिबल होगा, द स्किल फेयर जहाँ पे दिख रहा है वहाँ। और फिर एक लेफ्ट साइड का है, यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं इमेज, प्रोडक्ट का कोई भी इमेज, फिर यहाँ भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इमेज और वीडियो दोनों डाल सकते हैं। वीडियो में फिर वही यूट्यूब का जो वीडियो होगा उसके आईडी यहाँ पे डालिए और सबमिट कर दीजिए, तो वीडियो भी आ सकता है और इमेज भी आ सकता है। यहाँ पे वीडियो चलेगा यहाँ पे। और ये है हमारा कंपनी का लोगो, ये यहाँ से आप लोगो डाल सकते हैं कंपनी के। तो ये है हमारा क्रिएट, यहाँ पे आपका स्टॉल क्रिएट हो जाएगा। और आप जो अगर कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आप देखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा बायर एंड पे। अच्छा, ये जो स्टॉल है, ये स्टॉल सेम ऐसे ही एज इट इज बायर एंड पे भी दिखेगा। तो हमने इसलिए ये डाला है कि बहुत पूछते हैं कि हमारा स्टॉल कैसे दिखता है, कैसा दिखता है बायर एंड पे, तो इसलिए हमने ये डाल दिया है कि आप लोग भी देख सकते हैं, आपका स्टॉल ऐसा दिखेगा। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन बायर एंड पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिखता है, तो आप इस प्रोडक्ट वाला जो है ऑप्शन, उसके अंदर जाकर देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको दिखेगा बायर एंड पे भी। इसके क्लिक पे प्रोडक्ट खोलेगा। ई कॉमर्स साइट में जैसे होते हैं वैसा ही है, जूमिंग फीचर भी है यहाँ पे। और जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं इसके सारे यहाँ नीचे दिखेंगे, ऐसे दिखते हैं। ये है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में ये है कि आप जो भी है बायर और बाइंग हाउस को कौन कौन सा प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, कौन कौन से मतलब 360 इमेज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, इमेज या कैटलॉग, वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ कीजिएगा, तो जैसे बायर को आपको 360 इमेज नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं, और अगर दिखाना है तो चेक लगा के अपडेट कर दीजिए, तो वो एक्सेस बायर देख सकते हैं 360 इमेज आपका। ये है सेटअप व्हाट्सएप चैट। यहाँ पे व्हाट्सएप चैट का आप यहाँ पे क्रिएट व्हाट्सएप चैट पे अगर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 व्हाट्सएप नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि विजिबल होगा आपके स्टॉल पे। आपके स्टॉल पे विजिबल होगा, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे विजिबल होगा। जैसे आप क्रिएट स्टॉल पे जाते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम पे 2 व्हाट्सएप आइकन बन के आ जाएंगे। बायर के एंड पे, बायर जब भी आएंगे उसके क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, अगर वो सबमिट करते हैं तो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैट में आप मैक्सिमम 2 नंबर ही डाल सकते हैं। क्रिएट व्हाट्सएप कीजिएगा, तो यहाँ पे नंबर डालिए। जैसे ही सबमिट करते हैं तो ऐसे क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको अगर एडिट भी करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और दूसरा नंबर डालना है तो फिर से आप क्रिएट व्हाट्सएप कर लीजिए, दूसरा नंबर डाल सकते हैं। फिर सेटअप जूम मीटिंग। जूम मीटिंग सेटअप करने के लिए पहले आपको जूम पे मीटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो आपको मीटिंग आईडी मिलते हैं और पासवर्ड, वो यहाँ पे डालिए। स्टार्ट टाइम जो होता है वो डालिए और एंड टाइम डालिए। डालते ही सबमिट कीजिएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे वो जो लिस्टिंग है जो आपने क्रिएट किया, वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे कि हमने जो जूम मीटिंग क्रिएट किया है वो सही है या नहीं। और यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगा, उस पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा। जब आप कोई बायर से आप अगर ऑलरेडी मीटिंग में हैं, तो यहाँ पे एडिट करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑलरेडी इन मीटिंग। जैसे ही ऑलरेडी इन मीटिंग आप कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको बायर आपके जो स्टॉल है उस पे ऑफलाइन शो करेगा, मतलब बिजी शो करेगा, बिजी। और अगर आप बस जूम मीटिंग क्रिएट किए हैं तो बायर्स को ऑनलाइन शो करेगा। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन शो करते रहता है बायर्स को। प्रोफाइल, ये है हमारा प्रोफाइल सेक्शन। आप अपने कंपनी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे एक एडिटर आएगा, तो ये यहाँ पे आप अपने कंपनी के बारे में डाल सकते हैं और सबमिट कीजिएगा।
तो ये क्रिएट हो जाएगा और ये जो प्रोफाइल है वो भी स्टॉल पे दिखता है। एनालिटिक्स है ये है हमारा कि जितने भी कोई भी बायर्स हैं वो आपके स्टॉल पे विजिट करते हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो बायर्स का नेम, बायर्स का कंपनी नेम, कंट्री, ईमेल, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका क्या है और वो कब आए और जो यहाँ पे ये कब आए ये सब आ जाएगा। और ये जो व्यू डिटेल्स है इसके अंदर हमने वहाँ पे बायर्स को एक ऑप्शन दे रखा है वो अपना डिटेल्स शेयर करने का। ठीक है, जब जब वो डिटेल्स शेयर कर देंगे अपना तो ये व्यूज डिटेल्स में एक बटन आ जाएगा। उस बटन के क्लिक पे जब आप क्लिक कीजिएगा बटन पे तो उनका उन बायर्स का इन सब डिटेल्स के साथ फोन नंबर भी रहेगा। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या फिर जैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से पहले अपॉइंटमेंट पे आते हैं। अपॉइंटमेंट है आप यहाँ बायर के साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। जो बायर का जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे हम ये सिल्क फैब्रिक में हमारा जो भी है जिस कंट्री में है हमारा ये आ जाएगा कंट्री का नेम। फिर इस कंट्री में जो बायर्स हैं वो बायर्स आ जाएंगे। ये बायर्स इस कंट्री के हैं, ऑटो आ जाएगा। जो भी आपको अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करना है डेट उस डेट को डाल दीजिए और बुक स्लॉट कर दीजिए। जैसे ही बुक स्लॉट कीजिएगा तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे लिस्टिंग भी आ जाएगी यहीं पे कि आपने इस बायर्स को अपने के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। तो ये अपॉइंटमेंट फिक्स करते ही बायर एंड पे उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है बायर को कि इस एग्जीबिटर ने आपके साथ ये अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। तो वो वहाँ पे हमने बायर के एंड पे ये दे रखा है कि अप्रूव्ड करना है नोटिफिकेशन जो आया है वो अप्रूव्ड करना है अपॉइंटमेंट को या फिर कैंसिल करना है। तो वो जगह अगर वो अप्रूव करते हैं या कैंसिल करते हैं वो चीज आता है इस नोटिफिकेशन में कि इस बायर ने जो इस कंट्री के हैं वो अप्रूव्ड किए हैं या कैंसिल किए हैं। अप्रूव्ड किए हैं तो आप यहीं पे एक बटन आ जाएगा, नंबर उम्र रहता है उनका, वहां पे आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं जो भी, वो नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएगा। और ये रिसेप्शन और ऑडिटोरियम। रिसेप्शन ऑडिटोरियम ये है वो बायर एंड पे होता है कि उनको कैसे दिखता है रिसेप्शन, वो ऐसे दिखता है। हमने यहाँ पे डाल दिया आप लोगों को देखने के लिए भी। और ऑडिटोरियम ऐसे दिखता है। यही था हमारा डैशबोर्ड। और ये हमने ये 2 नंबर दे रखा है हेल्पलाइन नंबर। कोई भी अगर इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरीज हो, पूछना हो तो इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू धीरज जी। सो नाउ वी कैन प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछिए। धीरज जी हैं आंसर देने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन अबाउट कि कैसे अपलोड करना है, कैसे विजिबल होगा हमारा आपका स्टॉल बायर्स को, कुछ भी इस रिलेटेड कुछ भी हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। So I think there is no question. So thank you everyone. Hello. Thank you everyone. Okay. Yeah, hi sir. Yeah, tell us. Ankur this side from Global Fashion Mind. हाँ जी सर इसमें हम जो गूगल मीट है कांट बी ऐड दिस? नहीं, जूम ही हमने लिया है इसमें, गूगल मीट नहीं है इसमें। एक्चुअली जूम में टाइमिंग का है इशू सर। गूगल मीट में जैसे हम अगर गूगल का बिजनेस सूट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं आता है। धीरज जी इसमें आप आंसर दीजिए, क्या करें? हम गूगल मीट डाल सकते हैं लेकिन जूम मीटिंग का क्या था, हमारे पास जो एपीआई था वो जूम मीटिंग का इजिली हो गया था। डेवलपमेंट टीम ने जूम मीटिंग ही किया था। गूगल मीट का हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं आया था क्वेरी उस समय, इसलिए हम लोगों ने जूम मीटिंग डाला नहीं था। सर जूम वो मीटिंग आप एक्स्ट्रा में एक ऐड ऑप्शन दे सकते हो तो वो बेटर रहेगा सर। हेलो हेलो नमस्ते दीदी। शायद इसके हाँ एक बार डिस्कस कर लेंगे धीरज जी से कि क्या एक और ऑप्शन हो सकता है कि ऐड। एक्चुअली जूम मीटिंग में लास्ट टाइम जब हमने लॉगिन किया था, लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो उसमें ना कोई
खास उसमें कुछ बात बन नहीं पा रही थी। नहीं, Frankly एक्चुअली speaking. क्या होता है जब हम सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट करते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म में, तो कुछ वेबसाइट, कुछ एप्स होते हैं जो वो अलाउ नहीं करते। हम ये कर सकते हैं, एक बार मैं बात कर लेता हूँ धीरज जी से, कि अगर कोई लिंक हो जाए, क्लिक करके आपके मीटिंग पे चले जाए, या गूगल जूम मीट का एपीआई जो है कंपेटेबल नहीं था सर हर ब्राउजर के साथ, इसलिए वो नहीं डाला। यही इसमें कुछ लिमिटेशंस है गूगल मीट में, कि आप जीमेल में आप एक्सेस कर सकते हैं, पर आउटसाइड कोई प्लेटफॉर्म होगा उसमें एक्सेस करना मुश्किल होता है। फिर इस पे हम वो एक तो बार है सर, डिस्कस कर बट लेंगे, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे क्या है, क्या वे आउट हो सकते हैं। जी सर, ओके। कोई और, कोई किसी को कोई क्वेरी? Hello. हाँ जी बताएं। Hi, this is Janvi from Amats. यस टेल अस। I think मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी मीटिंग मिस कर दी थी। मुझे ये जानना था कि जो हम अपना वर्चुअल स्टॉल बनाएंगे पहले, वो कौन से लिंक पे जाके बनाएंगे? ये जो हमारे क्रिएट स्टॉल का है ना, ये मैम सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले मैम हम आपको अपने एंड में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं और लिंक देते हैं। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है वो खुलेगा। अब धीरज जी आप समझाएं उसके बाद। हाँ, जब ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, ये डैशबोर्ड है हमारा, जब ये आ जाएगा आपको, तो ये जो क्रिएट स्टॉल का जो ये है हमारा ये ऑप्शन, इसके क्लिक पे जब आप अंदर जाइएगा तो इस टाइप से स्टॉल खुलेगा आपका। फिर यहाँ से आप अपना कंपनी नेम डाल सकते हैं, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट, जो अच्छे प्रोडक्ट हो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन पे वीडियो और इमेज दोनों डाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, यहाँ डालने से पहले आपको ये वीडियो YouTube पे डालना पड़ेगा, फिर उस YouTube के लिंक में जो आईडी होते हैं वो आईडी यहाँ पे डाल के आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरीके से वीडियो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके गॉट इट। हाँ, इसकी बात तो मैंने सुन लिया था यार। हाँ, और ये लोगो है, यहाँ से आप लोगो डाल सकते हैं अपने कंपनी के लोगो। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? Hello. यस मैम टेल। This is Dr. Meenakshi from Cocoon Kapas. यस मैम। जैसे कि कोई जूम मीटिंग चल रही है और उसमें जब हम किसी के साथ ऑलरेडी मीटिंग में है, ये धीरज जी सेड कि बिजी शो होगा, राइट? यस। एंड मीनवाइल अगर कोई और इंटरेस्टेड होता है तो क्या उनको मतलब टाइम, उसी टाइम पे हम अलग से टाइम दे सकते हैं? अपॉइंटमेंट जाएगा मैम, अपॉइंटमेंट जाता So है। that appointment time we have to fill side by side with नहीं, the... वो बायर जब आपको, धीरज जी आप बताएं इसमें। हाँ, जब बायर्स आएंगे आपके स्टॉल पे, जी। तो आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय उनको विजिट दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जब आप फिर अगर उन बायर से आप अगर बात करना बंद हो गया आपका, तो फिर आप उसी एडिट के ऑप्शन में जाके फिर से आप ऑनलाइन शो कर दें, वहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्टिव करने का, एक्टिव कर देंगे तो फिर जो टाइम आपका है उस टाइम के इंटरवल में वो वहाँ पे ऑनलाइन शो करने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मीटिंग चल रही है और ओवर होगी वो ऑटोमेटिकली शो करने लगे कि ये ऑनलाइन हो गया है? वी हैव टू एवरी टाइम मेंशन दैट वी आर ऑनलाइन नाउ? यस मैम, ये आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, एंड हाउ मेनी पर्सन कैन अटेंड द फुल शो? मतलब एक ही साथ कितने कंप्यूटर एक ही ऑफिस से कनेक्ट हो सकते हैं विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड? मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर जिनके पास है आपका क्रेडेंशियल वो ओपन कर सकते हैं। और अगर मान लिया कि एक पर्सन उसमें से किसी के साथ मीट में है तो मेरे पूरे पोर्टल पे ही ऑफलाइन दिखाएगा? हाँ यस। हाँ, कंप्यूटर पे ही ऑफलाइन दिखाएगा? इसलिए हमने Which means हम एक बार में एक ही बायर से बात कर सकते हैं। We cannot handle multiple buyers. हाँ। जूम में आप एक ही बायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, पर अगर बायर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकता है, वो भी अपने एंड से वो अपॉइंटमेंट आपके साथ फिक्स कर सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था धीरज जी, जैसे अगर मान लिया मेरी ही क्रेडेंशियल से मेरा कोई एम्प्लॉय या मेरा कोई को पार्टनर एक ही साथ में हम ये सब कर रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ या लैपटॉप्स के साथ, तो क्या एक मतलब वो पूरा एक ही तरह ऑपरेट होगा या फिर अलग अलग मतलब शो करेगा? जैसे एक मीटिंग एक कंप्यूटर पे चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे बायर को दूसरे कंप्यूटर से अटेंड किया जा सकते?
नहीं मैम, एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा तो सिस्टम यूज एक ही है। को मतलब एक ही पर्सन हाँ, इसको क्योंकि मैम जूम आईडी आपका एक ही बना हुआ है। एक ही राइट। बना। तो उसका कोई सिस्टर ऐसे मतलब आईडी तो नहीं, हाँ, इसका ID जैसे एक, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, तो जैसे एक ही मतलब कंपनी के मल्टीपल आईडीज नहीं बन सकते हैं ताकि हम एक बार में मल्टीपल बायर्स हैंडल कर सके? या हम ही खुद लिंक या कुछ पेट मतलब लिंक्स हाँ। बना सकते हैं? यहाँ ये कर सकते हैं आप कि आप मल्टीपल कंप्यूटर पे मल्टीपल जूम मीटिंग सेटअप कर लीजिए। तो लेकिन हाँ, जूम मीटिंग भी 2 ही सेटअप कर सकते हैं मैक्सिमम। नंबर 2 ही है ना सर, क्योंकि नंबर 2 ही है, मैक्सिमम 2 जूम मीटिंग वो सेटअप। कैसे कर पाएंगे? 2 भी एक सफिशिएंट है, एक से तो ज्यादा ही है 2, वो कैसे हो पाएगा जब दूसरा, आईडी और हाँ, पासवर्ड तो? हमें अगर हम 2 कंप्यूटर से कर रहे हैं तो क्या हमें दोनों बार उस चीज का सेटअप करना पड़ेगा स्टॉल का? हाँ, दो मीटिंग सेटअप करना पड़ेगा यहाँ। सेटअप मीटिंग, ओके हम्म, ओके, वन टाइम पे 2 मीटिंग कर सकते हैं, राइट? हम्म। ओके, थैंक यू धीरज। उसके लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड आप दोगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आपको जूम में बनाना पड़ेगा अलग अलग आईडी। तो ये तो एक ही आईडी और पासवर्ड देंगे, राइट सर? हाँ, हम आपको दोगे हम आईडीज हम नहीं देंगे, वो आपको बनाना पड़ेगा जूम नहीं, में। पहले आप अपना ये कह रहे हैं कि पोर्टल में जाने के लिए हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक ही देंगे। एक ही देंगे। जूम में आपको अपना आईडी बनाना पड़ेगा, वो आप 2 बना के इसमें डाल सकते हैं। Right, we have the options because we are giving 2 numbers, right? Then we can do only 2 computers together because 2 numbers हमें चाहिए, right? And Dheeraj ji, when we will get this ID and password? As soon as possible. आज रात को मैम आपको मिलेगा। Okay, thank you sir. ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन? So thank you everyone for each BSM training. We will keep informing you from time to time, and we have recorded this Zoom meeting and we will upload it in YouTube. So I request you all to subscribe our YouTube channel. The name of the channel is the Indian Silk Export Promotion Council, and we will send you the login ID and password tonight. So thank you so much and stay safe. Thank you.